So in previous lab, we have learned the various commands of SQL. So today we will see these commands like inserting data to a table through select statement. Suppose there is a given table, okay? One table is there. Now you have to select, you have to insert the data in the current table, and you have to take the data from the previous table. So using this insert into command. So this thing, okay? Suppose जैसे आपने लिखा insert into employee, select star from employee, okay? It means you want to insert the data in a table, and you have to select the data from another table. This is one thing. Then again, we will see how to add a column in a table. Alter table, table name, add column. Alter table command is used whenever you want to change the structure of the existing table. Suppose you want to add a new column, okay, you want to drop a column, okay, and you want to modify the existing data type of a column. So these, in all these cases, you have to use the alter table command. Okay, ये चीज ये देखेंगे. I mean, we will add a column, we will drop column. Okay, other than this, we will drop a table and we will truncate a table. We will use these both commands. ठीक है? तो देख लेते हैं. इसके अलावा अपडेट और डिलीट भी देख लेंगे. तो इसी पे देखते हैं, है ना? ये तो आपने देख लिया. Let us see, let us do the practical. Okay, all of you can see my SQL screen. दिखाई दे रहा है? Yes sir. Okay, ठीक है. तो पहले देख लेते हैं. Connect system connected. ये कमांड किसके लिए है बताइए आप लोग. To connect to a database. ठीक है, समझ गए ना? ओके, कनेक्टेड हो गया. अब क्या करना है हमें देख लेते हैं. पिछली बार तो कुछ हम लोगों ने टेबल बनाया था ना. क्या नाम था पिछली बार की टेबल का? कुछ याद है किसी को? DESC शायद स्टूडेंट नाम का था. स्टूडेंट STUDENT. अरे यार ये ज्वाइन करना है. सेलेक्ट DESC स्टूडेंट. बिल्कुल सही. इसमें चेक कर लेते हैं इज देयर इज एनी डेटा. देखो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ. अगर किसी को भी नहीं समझ आएगा तुरंत पूछ लेना कि सर ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ. ठीक है, DESC किया हमने, ये समझ में आ गया. अब आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT. आई एम जस्ट वेरीफाइंग कि कौन सा टेबल था. अरे गलत लिख दिया कुछ. क्या गलत किए हैं बताओ इसमें. व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस कमांड? फ्रॉम का स्पेलिंग सर. बिल्कुल सही, गुड. तुम लोग देख रहे हो. इट मींस ठीक है, एक डेटा था. नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कोई और टेबल है, एक और टेबल बना लेते हैं जिसमें आई मीन क्रिएट टेबल. स्टूडेंट 1 2 भी शायद बनाया हुआ था हमने. कुछ भी ले लेते हैं. एक क्रिएट टेबल कॉलेज COLLEG कॉलेज 1 कॉलेज नाम का एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है. नाउ आई व्हाट इज माय एम? I'm just going to create a new table and its name is college. Okay, fine. Now, after creating this table, what I will do, I will
fit means I will insert the data in this college table and I will take these data from this existing table that is student. ठीक है, this is my aim. So you have to use the insert into command. ये करना है आपको. तो एक मैंने एक अलग से एक कॉलेज नाम का टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ और उसमें मैं सिंपल 3 फील्ड्स ही ले लेता हूँ. ठीक है, इसमें रोल नंबर लिया था तो इसमें ले लेता हूँ आईडी नंबर 3 अगेन 3 ले लिया. अच्छा, नेम की जगह पे मैं ले लेता हूँ यहाँ एस नेम ले लेता हूँ, एस अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ. ठीक है, अगेन varchar 2 let us say 10 ले लिया लेंथ का अगेन. ओके, so these are the 2 columns in this table college. Fine. So table is created. Can you see the message? Table is created. Fine. दिख रहा है आप सभी लोगों को? Yes, sir. Okay, now what I will do, I will insert because this table is just created. There is no data in this table. You can check it out. Select start from college. There is no row selected, means there is no data. Now what I will do, I will take the data from previous table and insert into this one. ठीक है, so use the insert into command. So insert insert into किस टेबल में? कॉलेज टेबल में. ठीक है, और डेटा कहाँ से सेलेक्ट करना है? Obviously, there is one option. Either you can specify the column name of this table, or if you will not specify the column name, by default it will consider the all column name. Fine. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 2 ही कॉलम है, या मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. Insert into college, then पहला क्या था? आईडी था ना, आईडी कॉमा एस नेम, एस अंडरस्कोर नेम. ठीक है, ये था. ठीक है, इंसर्ट इनटू कॉलेज. नाउ आपको क्या करना है? सेलेक्ट कहाँ से करना है? सेलेक्ट अगेन सेलेक्ट कॉलेज में कौन कौन सा पार्ट था? सेलेक्ट रोल आर नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट. Select. You can write here star also. Select R number comma into name from student. Let us see ये कमांड रन करता है कि नहीं. समझ गया ना यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? देखो क्या किया हमने, आपको समझ में आया कि नहीं आया? Did you understand this command? आ गया ना? Okay. Here means select, rather than specifying the all the particular column name, you can also specify the star. ठीक है, but star आप वहाँ use करेंगे ना when all the all the values should be repeated, duplicated, all the columns should means उस केस में करेंगे. But you must know कि if you want to select the few values, so you need to use this select variation, like क्या क्या कॉलम आपको सेलेक्ट करना है. ये तो ये हो गया. ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. फाइन. अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये अभी नहीं देखा, अभी कॉलेज नाम का मैंने एक टेबल क्रिएट किया. अब मेरा ये एम है कि मुझे एक इसमें कॉलम और ऐड करना है. ठीक है, कौन सा कॉलम ऐड करना है? लेट अस से सेक्शन आपको ऐड करना है. फाइन. सो how? Because that table has been already created. So how you will add this column? By using the alter table command. So whenever there is a you want to change in the existing schema structure of the table, you need to use the alter table command. So alter table use करते हैं. Alter table. Table name क्या है? Table name is college. College. Fine. Now add. कॉलम नेम क्या है?
कॉलम नेम सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ऐड कॉलम नेम सेक्शन, SECTION सेक्शन, ऐड सेक्शन मीन्स कॉलम नेम, ऐड कॉलम नेम, तो मैं आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, ऐड कॉलम नेम, देन डेटा टाइप ऑफ द कॉलम दैट इज char, this data size is 3. Fine. So what this command will do, this will add another column, its name is section, by using the alter table command. Table altered. Okay, just see the structure of the table. DESC college. हो गया ना, ऐड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बताइए, कैन यू सी दिस? Yes, sir. अल्टर, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलो ये तो हो गया है। अच्छा, व्हाट अबाउट द डेटा? इसमें डेटा की जगह में क्या होगा, नल होगा कि कोई डेटा होगा कि क्या होगा, बताइए भाई। आई हैव इंसर्टेड वन रो ना, तो एट दैट टाइम दिस कॉलम वाज नॉट प्रेजेंट, नाउ व्हेन आई विल, नल होगा, सर, null एग्जैक्टली, होगा। बिल्कुल सही, आप लोग समझते भी रहिए, एक दूसरे का रिस्पॉन्स भी सुनते रहिए, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नल मीन्स मिसिंग, अननोन, इनएप्लीकेबल, बाय डिफॉल्ट इट विल इंसर्ट द नल वैल्यू, ठीक है, ओके फाइन। देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, वन रात सेक्शन में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, नल वैल्यू, क्लियर, वेरी गुड। चलो अब इसी कॉलम को हम लोग ड्रॉप भी कर लेते हैं। तो जब हमेशा आपसे अगर कोई पूछता है कि हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम, so always you know that it means there is a existing table. Now to drop a column you need to, देखो ड्रॉप में क्या करते हैं, लड़के बताने लगते हैं, स्टूडेंट बताने लगते हैं, सर वो डिलीट टेबल, अरे भाई डिलीट, अभी डिलीट जो है, डिलीट से डेटा डिलीट किया जाता है, एंड दिस अल्टर कमांड इज यू नो डीडीएल कमांड, ओके, तो डीडीएल कमांड में आता है, इसका मतलब ड्रॉप करना चाहते हैं मीन्स आप कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। दिस ऑलवेज कंसीडर यू आर, first you are creating the structure of the table, then you are inserting the data one row at a time, then you are manipulating the data, you are deleting or whatever the things you are offering, then you are querying to the database कि आपने पूछा कि select star कि भाई सारा रो बताइए क्या क्या है डेटा, ओके फाइन। सो लाइक दिस इज व्हाट द वे। तो ड्रॉप करने के लिए क्या करना है, अल्टर टेबल, देन टेबल नेम क्या है, कॉलेज, ड्रॉप, ओके, ड्रॉप कॉलम लिखते हैं, COLUMN, ड्रॉप कॉलम, देन कॉलम नेम कॉलेज, सॉरी सेक्शन, let us see whether this drops or not. Table altered, so let us see whether the column is dropped or not. ड्रॉप करना मतलब उसको ड्रॉप करना, वहां हटा देना उसके स्ट्रक्चर से। DESC, टेबल नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, कॉलेज, यस, ड्रॉप हो गया कि नहीं, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। बिल्कुल सही, गुड, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. तो ये हो गया ड्रॉप कॉलम कैसे करते हैं। तो अब इसका भी रिस्पांस दे देंगे, चाहे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या कहीं भी पूछा जाए, यू कैन यूज दिस थिंग, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट कमांड मैं बताने जा रहा हूँ, एंड यू विल सी व्हाट आर दीज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कमांड, ठीक है। एक तो मैं करूंगा, पहले टेबल को मैं ट्रंकेट करूंगा, एक टेबल को मैं ट्रंकेट करके दिखाऊंगा और एक टेबल को मैं ड्रॉप करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो वी आर हैविंग टू टेबल like college and student, fine. So first I am going to drop a table, then you can easily see what is the difference between the drop and truncate. Clear? समझ में आया ना what is our objective? Is this clear to all of you or not? मैंने जो बोला वो समझ में आया, ठीक है। तो पहले मैं ड्रॉप करता हूँ, तो ड्रॉप किस टेबल को करूँ, कॉलेज और स्टूडेंट? इसके बाद कंक्लूजन आप खुद ही बताइएगा, देख के बताइए ड्रॉप किसको करें।
सर स्टूडेंट को स्टूडेंट को ड्रॉप करते हैं, DROP ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। टेबल ड्रॉप, फाइन, ओके। अब मैं करने जा रहा हूँ, ट्रंकेट करने जा रहा हूँ इसको, किसको? कॉलेज को। ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल मतलब किसको करने जा रहा हूँ? कॉलेज, COLLED। टेबल ट्रंकेटेड, दो चीज आपने देखा, ड्रॉप ट्रंकेट, ठीक है। अब DESC करके देखते हैं, लेट अस सी, DESC स्टूडेंट। Object student does not exist. Kindly note this line. What it means? It means as soon as I fire this command, that is a drop student, the memory which has been allocated to the student or the data dictionary which has been previously stored to the data means object that is previously stored in the data dictionary has been deleted and the memory is also released. Drop का मतलब हुआ कि it's not a command that which you can do the rollback operation or something like that. ठीक है, पूरी मेमोरी रिलीज हो गई, देयर इज नो जैसे आपका पूरा नामो निशान मिट चुका है, समझ गया कि नहीं? Technically, in this language you can call that the object does not exist means इसका मतलब क्या हुआ? You haven't created this object. तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आपने उसको मेमोरी एलोकेट की ही नहीं है। इट मीन्स डेटा डिक्शनरी में कोई डेफिनेशन स्टोर है ही नहीं। इट मीन्स योर ऑल डेटा, your all objects, that is whatever that is related with the table, all will be destroyed and memory corresponding to all the objects will be released. This is what the working of this drop table command. Now what about this truncate table? Select DESC college. See, ये तो दिखा रहा है भाई, स्ट्रक्चर तो दिखा रहा है कि नहीं? दिखा रहा है, कैन यू सी दिस? यस सर। अब क्यों दिखा रहा है बताइए, कोई बता सकता है? बहुत इंटरव्यू में सब पूछे जाते हैं, मैं तो प्रैक्टिकली करके दिखा के आपको बता रहा हूँ जो आपके माइंड में रहेगा। बताइए क्यों दिखा रहा है, किस केस में होगा? खुद सोचो ना, कब होगा ये तब होगा when all in case of the truncate table command, all the data will be deleted data का जब भी मैं डेटा का नाम बोलूं मीन्स rows will be deleted, but what will remain there? A small portion of your memory which has been allocated to the object will be stored in your, and that will remain in your memory. Memory means किसी data dictionary में the definition of the table will be saved, but in case of the drop table you are releasing the memory as well as object and all the things related with the object. तो पूछा ये जाता है कि भाई ड्रॉप में भी डेटा डिलीट हो रहा है, ट्रंकेट में भी डेटा डिलीट हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है, सी as soon as I am firing this DESC command, it is showing the structure of the table. तो ये कब शो करेगा? जब मेमोरी में रहेगा तभी तो शो करेगा। बताइए यस और नो? तो बस अब आपको दिख गया होगा डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है? सेलेक्ट कमांड भी फायर करिएगा तो इट विल शो नो रो सेलेक्टेड, बट उसमें तो ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, object table view does not exist, but what about this? Select star from college. No row selected. Can you see the difference? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? It means existing data is deleted. Data means the rows, but the structure of the table is safe.
जिसे ट्रंकेट करना है ना, किसी चीज को कंप्रेस करके एक जगह रख दो उसको उठा के, समझ गए ना? मेमोरी हैज बीन रिलीज, data part has been released, data has been deleted, but the structure of the table is safe. So that's why the truncate table is this is what the difference. So you will use the truncate table command उस सिचुएशन में जब आपको लगे कि नहीं यार स्ट्रक्चर का मैं यूज कर सकता हूं, नाउ आई कैन इंसर्ट अ पर्टिकुलर रो टू फ्री द डेटा, टू डिलीट द डेटा, ठीक है? बट अब आप कहेंगे कि सर वो तो डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन समझ गए, डिलीट भी तो यही काम करता है, डिलीट से भी डेटा डिलीट हो जाएगा। आपने दिखाया यहाँ पे डेटा नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फिर डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस हुआ? So in that case, the day when you will fire the delete command, you are not compressing your current memory. Means you are not your structure is safe. Your data has been deleted by using the delete command, but your structure, that is the memory, whatever that you have been allocated to your this table will remain safe. बट इन केस ऑफ द ट्रंकेट टेबल, ये कंप्रेस करके टेबल को एक जगह ऐसी जगह रख देगा जहां पे दैट इज नॉट ऑफ करंट यूज, आई मीन दैट इज नॉट ऑफ करंट यूज, बट व्हाट मींस इट मे बी चांस दैट यू कैन यूज दैट थिंग फ्यूचर, ठीक है? So this is what the difference between the drop and truncate and delete command, ठीक है? Fine, ठीक है? तो drop, truncate, is this clear to all of you or not? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? पहले बताइए आप लोग, बताइए। इज दिस ओके? समझ, गुड, समझ में आ गया, कोई बात ही नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर, कॉलेज टेबल का हम लोग रो को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसमें इंसर्ट कैसे करेंगे हम लोग? किसमें, किस टेबल को? कॉलेज टेबल में। कॉलेज टेबल को स्ट्रक्चर, देखो व्हाट आई एम सेइंग, द स्ट्रक्चर इज सेफ, लेट अस से इन फ्रंट ऑफ यू आई एम इंसर्टिंग, इसमें कुछ पूछना नहीं है, बस आपको करके देख लेना कि हो क्या रहा है, ठीक है? डोंट मिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी बाय डूइंग द प्रैक्टिकल थिंग, तभी आपको समझ में आएगा। थ्योरेटिकल थिंग भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है? आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं, इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू कॉलेज, ठीक है? वैल्यूज, आईडी मैंने लिया था 1 और नेम ले लेता हूँ राज, ओके, राज, फाइन, नयन, ठीक है? लेट अस सी इंसर्ट होता है या नहीं। वन रो क्रिएटेड, इट मीन्स, मैंने क्या बोला कि आपका स्पेस ट्रंकेट कर रहा, ट्रंकेट करना, ट्रंकेट जैसे आपने ट्रंकेट कमांड तो उसमें स्ट्रिंग मैचिंग में यूज किया होगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग में यूज किया होगा, ट्रंकेट स्ट्रिंग ट्रिम कर दिया, या लेफ्ट ट्रिम करते हैं, राइट ट्रिम, स्पेस को कंप्रेस करके एक मिनिमम स्पेस एलोकेट करके रखते हैं कि भाई अगर सपोज द टेबल इज टेकिंग 10 KB, देन इसको कंप्रेस करके 1 KB में ले आके कहीं ऐसे मेमोरी में रख रहे हैं कि जहां पे यू कैन यूज द स्ट्रक्चर। अब देखो, अब ये टेबल एक्टिव हो गया, एज सून एज यू हैव इंसर्टेड अ रो, that that it means right now you are using this row, this table, it means this table is now being used by the user or the database, ठीक है? But before that, when I truncated the table, the scenario was like this कि मेरा पर्पस था कि मैं इस टेबल को कोई भी स्पेस ना दूं, एक मिनिमम स्पेस देके कहीं ऐसी जगह पे रखूं जहां पे लेटर ऑन इफ इट इज रिक्वायर्ड देन आई कैन यूज दिस टेबल, ओके? तो डेटा बेस में हमारा जो रोल था इस टेबल का वो यही था कि स्पेस हमें बिल्कुल मिनिमम स्पेस देना है, बिकॉज दिस टेबल इज नॉट ऑफ द करेंट यूज, बट लेटर ऑन there is a chance to use this table in some way, okay? In that case you will use this truncate table command, otherwise you will use delete and or if you don't want to use, then drop table or drop database, whatever you want. Is this okay or not? ठीक है? समझ में आया? गुड, ठीक है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैंने कॉलेज नाम का ये टेबल जो भी बनाया है, ट्रंकेट किया था, अब फिर से ये वापस जिंदा हो गया है,
यूज कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, डिलीट करने जा रहा हूं इसके रो को। तो डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, DELET, डिलीट फ्रॉम, क्या हुआ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट है ना, सॉरी कॉलेज, अभी मैंने एक रो इंसर्ट किया है। अच्छा, what is the syntax of the delete command? Delete from table name where condition. Clear? Delete from table name where condition. You will use this where condition when you want to delete the specific row. Clear? And if you will fire this delete from table name, it will delete all the rows of your table. But if the scenario is that you want to delete a specific row, तो स्पेसिफिक रो का मतलब वेयर के साथ कोई कंडीशन लगाएंगे आप, इन दैट केस यू नीड टू यूज द डिलीट कमांड अलोंग विद द स्पेसिफिक रो आइडेंटिफिकेशन बाय यूजिंग द प्राइमरी की और व्हाटएवर you have at that time. Okay, so here I am going to delete a particular row. So delete from college where ID is equal to 1. ये क्या करेगा, it will delete the row, one row deleted. See, select star from college, no row selected. हो गया, डिलीट कमांड का भी यूज देख लिया आपने। ओके, ठीक है, समझ में आया डिलीट कमांड? यस सर। अब और सभी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 33 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, बट पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके ओके, बिकॉज दे आर द फंडामेंटल थिंग, यू शुड सी एंड हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। तो ये हो गया डिलीट कमांड, भी आपने समझ लिया। अच्छा, इफ समवन इज आस्किंग यू हाउ टू डिलीट द एंटायर रो ऑफ द डेटाबेस और टेबल, डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, how to delete the entire row of the table, which command do you use? Please write down those command, that command. तो आप क्या लिखोगे बताइए? entire rows को डिलीट करना चाहता हूँ, which command you will use? जैसे क्वेरी पूछ लिया गया है कि delete the entire row of the existing table, so which command you will write? डिल रो। हाँ, डिल रो, अदर उसमें डिल रो, हाँ बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिलीट फ्रॉम, हाँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम इन एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल। ओके, ठीक है, समझ में आया ना? चलो ठीक है। अच्छा, अपडेट कर लेते हैं, फिर से एक इंसर्ट रो कर लेते हैं। Again, I have inserted the same row, insert into college values. ठीक है, अब अपडेट करते हैं। You want to change the name from Raj to some other name, I mean XYZ, whose ID is 1. This is what your query. It means your query is like this: change the name of the person whose ID is 1. ठीक है, आपको ये क्वेरी पूछ लिया गया। Write the following query using the SQL syntax. अब क्या करेंगे? यू नीड टू यूज द अपडेट कमांड, क्योंकि यहाँ आपको पता है ID 1 exists, has been already inserted. Now here the thing is that you want to update the name of ID, means name of a person whose ID is 1 from Raj to some other name. Okay, so use the update command. तो अपडेट करते हैं। अपडेट के साथ क्या लिखते हैं? टेबल नेम क्या है हमारा? कॉलेज। सेट लिखते हैं, सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ पे कॉलम नेम किसका? नेम को, देयर इज अ कॉलम कॉलम नेम corresponding to this Raj name is, that is name. Set name is equal to राज। हाँ, राज है, राज को मैं चेंज करना चाहता हूँ। सपोज फिर ID is equal to 1। बिल्कुल सही। तो मैं सपोज मैं राज से चेंज करना चाहता हूँ अंकिता, यहाँ पे है, सामने दिख रही हैं अंकिता, ANKITA, अंकिता। ओके, वेयर
आईडी बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। सभी लोग जिनको नहीं आता वो लोग देख लें कृपया। ये क्या होगा भाई, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बताइए? सर नेम क्या? नेम के बाद सर डबल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो ऐसे करेंगे, गलती करेंगे तब सीखता है आदमी, है ना? कुछ एरर आया, कुछ सीखा तो आपने देखा। अब क्या हो गया, नेम नहीं था क्या उसमें, फिर क्या था? एस नेम था। नहीं आईडी -1 नहीं है, यहाँ एस नेम था, बिल्कुल सही। देख लेते हैं एस नेम करके, S_नेम सेट S_नेम। ओ वन रो अपडेटेड, कैन यू सी दिस? 4 बार गलती हुई, इन चारों चीजों से आपने कुछ सीखा? यस बिल्कुल सही, गुड 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 गुड। तो अंकिता मीन्स राज हैज बीन चेंज टू अंकिता। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज 1 अंकिता। ओके ठीक है। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर ज्वाइन करो तुम लोग, ठीक है ना? 10 मिनट के बाद। मजा आ रहा है कि नहीं? तो सर प्रैक्टिकल करने में मजा ही आएगा। बहुत ज्यादा सर। सीखते रहोगे, मैं तो बैठा के सब करवा दूंगा, जितना मुझे लगभग आता है मैं तो सब बता दूंगा उतना। हाँ एटलीस्ट पहले जितना आता है उतना तो सीख लो तुम लोग, है ना? फिर बाद में देखना। हाँ सर। ठीक है चलो, जितना है बता देता हूँ आज, जितना बता है, ठीक है। चलो अभी एंड करता हूँ, फिर दूसरा सेशन ज्वाइन करूंगा। 5 मिनट का ब्रेक कर लीजिए आप लोग। 10 ओके सर। मिनट।